हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 15 द मेजर। तो इसमें देखेंगे हम पाठ का उच्चारण, अर्थ, एक्सरसाइज, वोकेबुलरी देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ वर्क है। चलिए तो उस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के उच्चारण से। English, Class 5, Lesson 15, Page number 87, The Miser। कंजूसी की भी हद होती है। आओ देखें इस कंजूस को। Once there was a very rich man. He was a miser. He ate very cheap food and spent very little money. He lent money to small shopkeepers at a high interest. In this way, he earned a lot of money. Every morning, he went out to see the shopkeepers and came home at midday. The miser had a watchman to look after his house. The watchman lived in a hut near the gate. He liked fish and his wife cooked it for him every day. The watchman told his wife, Cook the fish before midday. Our master will be out then. He doesn't eat meat or fish and he will not like the smell of fish. One day the master came home early. He walked past the watchman's hut and caught the smell of fish. It was a nice smell and he liked it very much. That afternoon he called the watchman and asked him, What were you cooking today? The watchman said quickly, I won't do it again, sir. Please, excuse me. The miser said, Don't be afraid. I'm not angry. What was your wife cooking? Please tell me. The watchman said, We were cooking fish. the miser said, Please, cook it every day. I like the smell very much. The watchman and his wife thought, Our master is mad. but they cooked fish every day. After a month, one evening, the watchman and his wife came to see their master. Sir, you like the smell of fish. The watchman said to his master, So, we cook it every day. But fish is not cheap. It is very costly. It costs us a lot of money. I earn only 30 rupees a month. So please give us money for the fish. The miser thought for a while. Then he said, Oh, all right. Wait here. He went into his room and shut the door behind him. He took out some silver coins from a bag. He dropped them one by one on the floor. The watchman and his wife heard the tinkle of the coins and were very happy. They said, He is going to give us all that money. After some time, their master came out and sat down on a chair. He then asked the watchman and his wife, Did you hear the tinkle of the coins? Yes, sir, we did. said the watchman. Did you enjoy it? Asked the miser. Yes, sir. Said the watchman and his wife. The miser then said, All right. I enjoyed the smell of your fish and you enjoyed the sound of my coins. I don't ask for your fish, so you don't ask me for money. Now go away. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। चलिए अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। लेसन
15 पार्ट 15 द माइजर, तो इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा कंजूस। तो यहाँ पर एक कंजूस के बारे में हम पढ़ेंगे। वंस एक बार की बात है, देयर वाज ए वेरी रिच मैन, यहाँ पर एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। ही वाज ए माइजर, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कंजूस था। ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेंड वेरी लिटिल मनी। तो वह क्या खाता था, वह पैसे बचाने के लिए बहुत ही ख़राब क्वालिटी का खाना खाता था और थोड़े पैसों में ही अपनी गुजारा करता था, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करता था। ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट ए हाई इंटरेस्ट, वह जो छोटे दुकानदार हैं उनको क्या करता था, बहुत ज़्यादा महंगा में इंटरेस्ट, ज़्यादा ब्याज में वह पैसे देता था। इन दिस वे ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, और इससे ऐसे करते करते वह बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है। एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड कम होम एट मिड डे। तो वह क्या करता था, प्रत्येक सुबह सो के उठता था और उन दुकानदारों को देखने के लिए चला जाता था। उसके बाद वह दोपहर में अपने घर वापस आता था। द माइजर हैड ए वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस, अपने घर की देखभाल करने के लिए उसने एक वॉचमैन रखा हुआ था। कौन, एक कंजूस आदमी है वही, ठीक है। अब देखिए आगे, द वॉचमैन लिव्ड इन ए हट नियर द गेट, वह गेट के पास में ही एक झोपड़ी में रहता था। कौन, वॉचमैन। ही लाइक फिश, वह मछली पसंद करता था। एंड हिज वाइफ कुक इट फॉर हिम एवरी डे, और उसकी पत्नी उसके लिए प्रतिदिन मछली पकाती थी। द वॉचमैन टोल्ड, वॉचमैन बोलता है, क्या बोलता है, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, कुक द फिश बिफोर मिड डे, जो मछली है उसको दोपहर के पहले पका लिया करो। आवर मास्टर, हमारा जो मालिक है, विल बी आउट देन, अभी दोपहर में बाहर रहता है। ही डज नॉट ईट मीट और फिश, वह ना तो मांस खाता है और न मछली खाता है। कौन, उसका मालिक, उसका मास्टर। एंड ही विल नॉट लाइक, और वह तो पसंद भी नहीं करता, स्मेल ऑफ फिश, मछली की सुगंध को वह पसंद भी नहीं करता है, खाना तो दूर की बात है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द मास्टर केम होम अर्ली, अब उसका जो मास्टर है, जो माइजर है, वह घर जल्दी आ जाता है। ही वॉकड पास द वॉचमैन हट, और वह जो वॉचमैन है उसके झोपड़ी के पास में चलते हुए आता है। एंड कैच द स्मेल ऑफ फिश, उसे मछली की सुगंध जो होती है, खुशबू होती है, वह उसके नाक में चला जाता है। इट वाज ए नाइस स्मेल, वह तो बहुत ज़्यादा सुगंधित था और उसको यह खुशबू पसंद आ गया। एंड ही लाइक इट वेरी मच, और यह खुशबू उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज में देखिए, जो माइजर है, जो मास्टर है, उसको मछली का खुशबू जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। दैट आफ्टरनून ही कॉल्ड द वॉचमैन, तब उसने दोपहर में क्या किया, बुलाया वॉचमैन को। एंड आस्क हिम, और उसको बोलता है, पूछता है, व्हाट वेयर यू कुकिंग टुडे, आज तुम लोग क्या खाना बना रहे थे, बताओ। तो द वॉचमैन सेड क्विकली, वॉचमैन जो है तुरंत बोलता है, आई वुड नॉट डू इट अगैन, हम आज के बाद उसे कभी भी दोबारा नहीं करेंगे। सर महोदय, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, हमें माफ़ कर दीजिए। द माइजर सेड, तो वह कंजूस बोलता है, डोंट बी अफ्रेड, तुम घबराओ नहीं, आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा में नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट वाज योर वाइफ कुकिंग, वास्तव में बताओ तुम्हारी पत्नी क्या खाना बना रही थी, प्लीज़ टेल मी, कृपया करके मुझे बता दीजिए। तो वॉचमैन सेड, वॉचमैन बोलता है, वी वेयर कुकिंग फिश, हम जो है मछली पका रहे थे। तो माइजर सेड, तो कंजूस बोलता है, प्लीज़ कुक इट एवरी डे, तुम इसे प्रतिदिन बनाया करो कृपा करके। आई लाइक द स्मेल, मुझे जो है वेरी मच, इसका खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तुम लोग इसे रोज़ बनाया करो, मैं इसे रोज़ सूंघूंगा, ऐसा उसका कहना है। और वह यह नहीं बोलता है कि इसको मुझे खाना है, बल्कि वह रोज़ सिर्फ उसका सुगंध लेना चाहता है। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, और जो वॉचमैन है और उसकी वाइफ जो है सोचने लगते हैं,
आवर मास्टर इज मैड, लगता है हमारा जो मालिक है पागल हो गया है। बट दे कुक फिश एवरी डे, लेकिन वे प्रतिदिन मछली खाना बनाते थे मछली को। ठीक है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद क्या हुआ, वन इवनिंग, एक शाम को वॉचमैन एंड हिज वाइफ, दोनों जने वॉचमैन और उसकी पत्नी, केम आए टू सी देयर मास्टर, अपने मालिक को देखने के लिए आते हैं सर, और उसको बोलते हैं यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, आपको तो मछली का खुशबू बहुत पसंद है और आप प्रतिदिन उसका खुशबू को लेते हो। ठीक है। द वॉचमैन सेड, उसके वॉचमैन ने कहा टू हिज मास्टर, अपने मास्टर को बोलता है कि आपको तो मछली का खुशबू बहुत पसंद है और आपने कब बोला कि हर दिन पूरा महीने बनाया करो, हम लोग तो प्रतिदिन बना रहे हैं उसको। सो वी कुक इट एवरी डे, इसलिए हम उसको प्रतिदिन खाना बना रहे हैं। बट फिश इज़ नॉट चीप, लेकिन जो फिश है वह ख़राब क्वालिटी का नहीं होता है, वह तो उच्च क्वालिटी का होता है और वह बहुत महंगा होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, ज़्यादा महंगा होता है यह। इट कॉस्ट अस ए लॉट ऑफ मनी, इसके लिए हमें ख़रीदने में बहुत सारा पैसे खर्च हो जाता है। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ ए मंथ, मैं तो सिर्फ 30 रुपये महीने कमाता हूँ। सो प्लीज़ गिव अस मनी फॉर द फिश, इसलिए आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम मछली ले आएँ और आप उसका सुगंध को फिर से ले सकेंगे। नहीं तो आपके सुगंध के लिए तो हम मछली बना रहे हैं, तो आपको हम सुगंध चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। तो माइजर थॉट वाइल, तो कंजूस जो है सोचने लगता है एक मिनट के लिए, और फिर देन ही सेड, और वह बोलता है ओह हाँ, ऑल राइट, ठीक है, वेट हियर, तुम इंतज़ार करो। ही वेंट इनटू हिज रूम, वह अपने रूम के अंदर, कमरे के अंदर चला गया। एंड शट द डोर, दरवाजे को बंद कर देता है। बिहाइंड हिम, और दरवाजे के पीछे में क्या करता है, ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन, वह कुछ सिल्वर के सिक्के को उठा लेता है। फ्रॉम ए बैग, एक बैग में। ही ड्रॉप्ड देम वन बाय वन, और वह उन सिक्कों को एक एक करके नीचे फर्श पर गिराता है। ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिराता जाता है एक एक को क्रम से, और उससे से टन टन की टिंकल टिंकल की आवाज़ आती है। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, जो वॉचमैन है और उसकी पत्नी है, हियर्ड, सुन रहे हैं, टिंकल ऑफ द कॉइन, जो कॉइन है, सिक्का है, उसकी खनक को वो लोग सुनते रहते हैं और उनको अच्छा लगने लगता है। एंड दे वर वेरी हैप्पी, और उसकी आवाज़ को सुन करके वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दे सेड, वे बोलते हैं ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल द मनी, लगता है ये सारे पैसे हमको मिलने वाले हैं, और वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चलिए पेज पलटते हैं, अब आ गए हैं अगले पेज पर। चलिए अगले पेज में देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है कि उसका सिक्का जितना भी थैली में था वो सब खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद देयर मास्टर कम आउट, और फिर उसका जो मालिक है वह बाहर आ जाता है। एंड सट डाउन ऑन ए चेयर, और एक कुर्सी में आराम से बैठ जाता है। ही देन आस्क्ड, और वह फिर पूछता है किसको, वॉचमैन और उसकी वाइफ को, डिड यू हियर द टिंकर ऑफ कॉइन, क्या तुम लोगों ने सिक्के की खनक सुनी? तो उन्होंने कहा यस सर वी डिड, हाँ सर हमने सुना। वॉचमैन बोलता है डिड यू एंजॉय इट, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया? आस्क द माइजर, कंजूस आदमी बोलता है तुम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो यस सर बोलता है वॉचमैन एंड हिज वाइफ, दोनों मिलकर बोलते हैं हाँ सर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सिक्का को सुन रहे थे, एक एक सिक्का का आवाज़ हमारे पास आया है और उसको हम ध्यान लगा कर सुने, हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो द माइजर देन सेड, उसके बाद जो है उसका कंजूस आदमी बोलता है ऑल राइट, सब ठीक है, आई इंजॉय द स्मेल ऑफ योर फिश, मैंने तुम्हारे मछली का स्मेल को ले करके बहुत इंजॉय किया। एंड यू इंजॉय द साउंड ऑफ माई कॉइन्स, और तुम लोगों ने मेरे सिक्कों की खनक को सुन सुन करके बहुत इंजॉय कर लिया, बहुत मज़े किए। आई डोंट आस्क फॉर योर फिश, मैंने कभी भी तुमसे तुम्हारा मछली मांगा है क्या? कभी नहीं मांगा। सो यू डोंट आस्क मी, इसलिए तुम लोग भी फॉर मनी, पैसे के लिए मुझसे मत बोलो। नाउ गो अवे, अब तुम लोग जा सकते हो। इस प्रकार से यह कंजूस आदमी सिर्फ स्मेल लेता है और पैसे नहीं देता है। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं।
अब आते हैं एक्सरसाइज पर। फर्स्ट है न्यू वर्ड। हमने क्या क्या सीखा? कॉइन, मीट, मिड डे, टिंकल, वाइल, लैंड, एक्सक्यूज, वन बाय वन। रीड एंड राइट। फर्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन। पहला देखिए, हाउ वाज द रिच मैन। जो अमीर आदमी था वह कैसा था? तो वह माइसा टाइप का था, कंजूस था, ठीक है। सेकंड, हु डिड ही लैंड मनी टू। उसने जो पैसे है उसको किस क्या करता था उनको? तो किसको देता था? तो वो जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते थे उनको देता था। और क्या लेता था? उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, ठीक है। थर्ड, व्हाट डिड ही वॉचमैन्स वाइफ कुक एवरी डे। तो क्या पकाती थी? फिश पकाती थी, ठीक है। फोर्थ, डिड ही माइजर लाइक द स्मेल ऑफ द फिश। तो उसका जो माइजर है उसको बहुत पसंद आया, तो यस लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या करता था? तो वह प्रतिदिन उसको स्मेल करता था। द माइजर इंजॉय द स्मेल ऑफ द वॉचमैन्स फिश। तो क्या किया है वो कंजूस आदमी ने? वॉचमैन्स का स्मेल को, जो मछली का स्मेल है उसको तो वो बहुत इंजॉय किया है। ही वार द वॉचमैन एंड हिज वाइफ इंजॉय। तो उसने वॉचमैन और उसकी पत्नी को किस प्रकार से इंजॉय करवाया? तो जो उनके पास सिल्वर का कॉइन था उसके उन्होंने टिंकल उनको सुनाया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। बी, हु सैड एंड टू होम। किसने किससे कहा? कुक द फिश बिफोर मिड डे। किसने कहा? तो वॉचमैन ने कहा, ठीक है। तो वॉचमैन यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। वॉचमैन ने अपने वाइफ से कहा, तो यहाँ पर वाइफ हो जाएगा, ठीक है। वाइफ को कहा वॉचमैन ने। सेकंड, प्लीज़ कुक इट एवरी डे। कृपया इसे रोज़ बनाया कीजिए। आई लाइक द स्मेल वेरी मच। मुझे यह जो स्मेल है बहुत ज़्यादा पसंद है। किसने कहा? तो माइजर ने कहा, कंजूस आदमी, ठीक है। मास्टर है तो यहाँ पर माइजर या मास्टर दोनों लिख सकते हैं। टू यहाँ पर वॉचमैन, ठीक है, वॉचमैन लिख लेंगे। थर्ड, ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल द मनी। किसने कहा? तो वॉचमैन ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है। फोर्थ, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ कॉइन्स। किसने कहा? तो यहाँ पर माइजर ने या मास्टर ने, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। किससे कहा? वॉचमैन एंड उसकी वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर वॉचमैन एंड उसकी वाइफ को कहा, ठीक है। इस प्रकार से अलाउड माइजर शॉपकीपर्स इंटरेस्ट अर्न मिड डे कुकड फिश वॉकड। स्पीड में जोर से बोलना है आपको, ठीक है। लाइक्ड एक्सक्यूज कॉस्टली ड्रॉप्ड टिंकल कॉइन्स ऑल राइट इंजॉयड वुड नॉट वॉन्ट, ठीक है। वो नॉट। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो हम अगले पेज पर आ गए हैं। लेट्स टॉक। चलिए बातचीत करते हैं। वर्क इन पेयर्स। पेयर्स में बातचीत करना, जैसे कि आस्क योर फ्रेंड। अपने दोस्तों से पूछिए क्वेश्चन अबाउट ऑल थिंग्स सी और डस। देखिए क्या करना है। यूज क्वेश्चन वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है, ठीक है। जिसमें वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, इस प्रकार से आपको लगाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक देख लेते हैं। रानू आई टेक माई लंच एट 12 o'clock। वह बोलती है कि मैं अपना खाना दोपहर 12 बजे लेती हूँ। तो मंजू उसको क्या प्रश्न पूछती है? व्हेन डू यू टेक योर लंच। तुम कितने बजे खाना खाती हो अपना दोपहर का खाना को? तो उसका उत्तर हो गया आई टेक माई लंच एट 12 o'clock। अब देखिए रानू आई प्ले इन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मंजू का प्रश्न क्या हो जाएगा? वेयर डू यू प्ले। वेयर डू यू प्ले, तो उसका आंसर होगा आई प्ले इन द ग्राउंड, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए वेयर डू यू प्ले, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए रानू का फिर से आंसर हमें मिल रहा है आई गो टू स्कूल एट 9:45 AM यहाँ पर, ठीक है। तो अब मंजू का प्रश्न आ जाएगा व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे। अब है रानू। रानू का अगला आंसर देखिए आई टेक रेस्ट एट होम ऑन संडे। मैं संडे को घर में आराम करती हूँ। तो मंजू का क्या प्रश्न हो जाएगा? तो प्रश्न उसका है
व्हेन डू यू टेक रेस्ट, तुम यहाँ पर कब आराम करती हो। व्हेन डू यू टेक रेस्ट, तो आई टेक रेस्ट एट होम ऑन संडे, मैं संडे को आराम करती हूँ। रानू का आंसर फिर से बबलू इज़ माई ब्रदर, तो हु इज़ योर ब्रदर, तो बबलू इज़ माई ब्रदर। ठीक है। वोकेबलरी देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं मीट, वाइल, कॉइन, शर्ट, टिंकल, इंजॉय, इंटरेस्ट, स्मेल, वेट, एक्सक्यूज, इन सभी को खाली स्थान में भरना है। फर्स्ट में देखिए, आई फेल्ट पिटी फॉर द बेगर एंड गिव हिम ए कॉइन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉइन। ठीक है, कॉइन ऑफ 5 रुपीज़, तो यहाँ पर आपका कॉइन को लिख लेंगे ये वाला। सेकंड, आई एम वेजिटेरियन, आई डो नॉट मीट, मीट नहीं खाता हूँ, तो आप यहाँ पर मीट को लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला। थर्ड, आई ग्रीडी मैन लव्स द, तो यहाँ पर आपका थर्ड में क्या आ जाएगा, टिंकल ऑफ कॉइन वेरी मच। ठीक है, तो यहाँ पर टिंकल लगा देंगे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका। चलिए चौथा में पेज पलटते हैं, अगला हम देखेंगे। तो अगले पेज में देखिए, फोर्थ में, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम ए वर्क, यहाँ पर आएगा आपका वाइल। 5 में आपका एक्सक्यूज, यहाँ पर ब्लैंक होना था पर यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है। 6, सुशांत गेव ए बर्थडे पार्टी इन द स्कूल कैंटीन, वी विल एंजॉयड इट वेरी मच, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। 7th में, आई एम नॉट कमिंग टुडे, प्लीज डू नॉट वेट फॉर मी। ठीक है। 8 में देखिए, शट द डोर और एनी एनिमल में इंटर द हाउस, दरवाज़ा बंद कर दीजिए वरना कोई जानवर अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 8 में कंप्लीट हो गया। 9 में देखिए, आई कैन लेंड यू मनी एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। 10th, आई डोंट लाइक द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ गार्लिक, 10th नंबर रहेगा। चलिए वोकेबलरी में देखते हैं। तो यहाँ पर वोकेबलरी में देखिए, मैच करना है। माइजर का आपका स्पेन, थ्रिप, चीप का आपका हो गया कॉस्टली, क्विकली का स्लोली, शट ओपन, हैप्पी का सैड, मास्टर का सर्वेंट, स्ट्रॉन्ग का वीक, इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। चलिए बी में देखते हैं, द वर्ड इन द सर्कल डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द वर्ड इन द बॉक्स। चलिए पेज पलटते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बॉक्स में आपको सेंटेंसेस बनाते चलना है, इनका उपयोग करते हुए। माइजर, चीप, कॉस्टली, मैड और नाइस। ठीक है। तो आप इन सभी वर्ड के आप अपने वर्ड भी बना सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, बुक में आया हुआ इनके लाइंस को आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी काम आपको करने हैं। चलिए ये आपके लिए वर्क हो गया। अब है स्ट्रक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर चलते हैं। ग्रामर नोट्स, अब यहाँ पर ग्रामर है, जैसे कि स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेशल टाइम दे दिया जाए, जैसे कि 7 o'clock, या देखिए 8:30 AM फिक्स टाइम है, या फिर हॉलीडेज पीरियड होता है 8 क्रिसमस नाइट फिक्स टाइम रहता है, या फिर मॉर्निंग इवनिंग कभी भी एक टाइम में, जैसे सैटरडे को मॉर्निंग में क्लास लगती है और इवनिंग में छुट्टी हो जाती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ईयर, मंथ, सीजन, एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1998 एक क्या है, ईयर हो गया। फिर मंथ अगर हम जनवरी फरवरी करें तो जनवरी फरवरी भी हमारा मंथ हो गया। अब सीजन में विंटर क्या है, सीजन हो जाता है। ठीक है। तो देखिए 8 को हमें कहाँ पे लगाना है, टाइम है, बजे है, या फिर कोई क्रिसमस या छुट्टी हॉलीडे होता है, नाइट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, यहाँ पर हम 8 का इस्तेमाल करेंगे। और इन का इस्तेमाल कब करेंगे, ईयर में, मंथ में, सीजन में, जैसे कि इन 98, इन विंटर, इन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है। चलिए अब इसको हमें क्या करना है, नीचे दिए गए ब्लैंक्स में इन और 8 का उपयोग करके बनाना है। चलिए बनाते हैं।
तो जैसे फर्स्ट में देखिए आसिम गोज टू स्कूल, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के लिए देखिए क्या यूज करना, इन, तो इन द मॉर्निंग। फिर देखिए दूसरा, महक प्लेस विथ हर फ्रेंड इन द इवनिंग, क्योंकि इवनिंग में भी इन यूज करना है। थर्ड, ही कम्स होम फॉर लंच मिड डे, देखिए नाइट मिड डे सभी में 8 आएगा, तो आप यहाँ पर 8 यूज कर सकते हैं। फोर्थ, हिज स्कूल एंड 8, यहाँ पर बजे में भी 8 लगानी है, तो 8 4 PM, 8 7 o'clock, ठीक है। अब 6 देखिए, माई यंगर ब्रदर वाज बोर्न, सन के आगे इन लगानी है, तो इन 2006, इन द मंथ, मंथ के आगे भी हमें इन लगानी है, तो मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। 7 देखिए, द ट्रेन अराइव, बजे है इसलिए 8 लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पेज पलटते हैं। अब है फन टाइम। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर से कहानी दिया गया है, तो उसको आपको सीक्वेंस में बनाना है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड और आपका फोर्थ, ठीक है। तो चलिए क्रम से पढ़ते हैं। टू फ्रेंड वे आर पासिंग थ्रू इन ए जंगल सडनली, देखिए 2 दोस्त हैं जंगल पार कर रहे थे, तभी अचानक क्या हुआ, एक बियर, ओ ए बियर, ये बोलता है बियर आ गया है, रन क्विकली, चलो दौड़ करके भागते हैं। तो ये लड़का यहाँ पर क्लिम ऑन ए ट्री, पेड़ पर चढ़ गया है। अब ये पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो बोलता है हेल्प मी, मेरी मदद करो वरना भालू मुझे खा जाएगा। तो अब बोलता है आई एम सॉरी, मैं मदद नहीं कर सकता। तब इसने क्या किया, इसको एक आइडिया आया। द बियर स्टॉप नियर द मैन, वह आई होल्ड माई ब्रेथ, मैं अपनी सांसें बंद कर देता हूँ, सो दैट आई विल टेक मी एज डेड, तब भालू मुझे सोचेगा कि मैं मर गया हूँ और मुझे कुछ नहीं करेगा, ऐसा सोच के वह नाक को बंद कर देता है। और भालू जो है उसका पूरी चारों तरफ घूमता है, फिरता है, हिलाता डुलाता है और फिर वह आगे निकल जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वह उड़ जाता है। वाट वॉज द बियर टेलिंग इन योर ईयर्स, भालू तुम्हारे कान में क्या बोल रहा था। तो वह बोलता है हा, ही टोल्ड मी, इट टोल्ड मी, वह मुझे बोल रहा था, बी अवेयर, सावधान रहो, आप द सेल्फिश फ्रेंड, जो दोस्त सेल्फिश होते हैं उनसे बच करके रहना, ऐसा वह मुझे बोल रहा था और बोल करके चला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।